क्लास 10वीं ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੈਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਦੈਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਏਗੀ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੇ 2025 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कहानी है जी अपने को ममता। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਰ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਮਮਤਾ ਰੋਹਤਾਸ दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री ही, मतलब वो विधवा हीगी। जब उसके पिता ने जदोदे पिता ने शेरशाह सूरी से रिश्वत के रूप में सोना स्वीकार किया तो स्वमानी ममता ने उसे अनर्थ कह के ठुकरा दिया, उन्हें नहीं लिया। युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद वह काशी के पास एक झोंपड़ी में रहने लगी। जदोदे पिता की डेथ होगी, एक रात उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुगल सम्राट हुमायूं को शरण दी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਉਹ 'ਚ ਹੁਮਾਯੂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ ਉਸਕਾ ਧਰਮ ਥਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ शरण ਦਿੱਤੀ। अंत में उसी स्थान पर हुमायूं के बेटे ने अकबर ने एक अष्टकोण मंदिर बनवाया, लेकिन उस पर ममता का कोई नाम नहीं था। उन्हें मंदिर बनाया कि मेरे ही जड़ा हुमायूं पिता ही उन्हें इत्थे विश्राम किया सीगा, बट जिन्ने ममता ने उसनू शरण दी ਉਹਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਵह एक विधवा, स्वाभिमानी, ईश्वर पर विश्वास रखने वाली और कर्तव्य प्राण्य महिला थी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? चूड़ामणि अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी कि उसका ब्याह हो जाए जल्दी तो जल्दी, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया। उस तो बाद धोखा। शेरशाह ने के सिपाहियों ने डोलियों में छिपकर रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया, ठीक है। उन्होंने उन्हें धोखा दिता ही, तो मतलब बड़े धोखे दे नाल मतलब वो छिपकर आए तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। शरणागत की रक्षा।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀਗਾ को भी अपनी झोंपड़ी में आश्चर्य दिया मतलब शरण दी क्योंकि वह भारतीय संस्कृति के अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। उस तो बाद आ गया अष्टकोण मंदिर। हुमायूं की याद में वहाँ विशाल मंदिर बना पर ममता का त्याग गुमनाम रह गया पर ममता तो उन्होंने एक नाम तक नहीं लिखाया। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੈप्टर हो जाएगा। ममता रोहतास के मंत्री चूड़ामणि सीगा ਉਹਦਾ ਨਾਮ की बेटी थी जिसने रिश्वत के सोने को ठुकरा दिया। उन्हें रिश्वत तक नहीं ਲਈ। पिता की मृत्यु के बाद वह झोंपड़ी में रहने लगी। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। वहाँ उसने मुगल हुमायूं को शरण दी ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ। बुढ़ापे में जब वह मृत्यु शैय्या पर थी ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ तब हुमायूं के भेजे घुड़सवार वहां आए। उसकी झोंपड़ी की जगह मंदिर बना पर ममता का नाम इतिहास से ओझल रहा मतलब ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮਮਤਾ ਕੌਣ ਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਤਾ ਕੌਣ थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। ठीक है। उस तो बाद आजूगा मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी। मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी ममता के भविष्य तथा अपने दुर्ग की चिंता थी। अपनी बेटी की तां चिंता कि वो विधवा वो तो जल्दी विआह हो जाए। ठीक है। उस तो बाद मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा की देना चाहेगा। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे पर उन्हें नहीं ले उन्हें ठुकरा देते। ठीक है। उस तो बाद आ गया फोर्थ डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आया ਸੀਗਾ ਡੋਲੀਓ में ਇਸਤਰੀ ਵੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ में शेर शाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। फिफ्थ क्वेश्चन आ रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी। ठीक है। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ रोहतास दुर्ग ही ना ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ लगी। अपने पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता दुर्ग छोड़कर काशी के निकट। ठीक है, याद रख लो काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। उस तो बाद सिक्स्थ है ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा या शरण मांगी। ठीक है। ममता से झोंपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा। ठीक है। उस तो बाद 7 था ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई। हुमायूं ने अपनी झोंपड़ी 'ਚ स्थान दे के आप किथे रहन चली गई। ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडरों में रात बिताने के लिए चली गई बिकॉज झोंपड़ी 'ਚ हुमायूं ने शरण दी सीगी। ठीक है। 8 था चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ। ठीक है। चौसा युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵਾ ਜੀ ਅਸ਼ਿक्षित का हृदय। ठीक है। ਇਹਦਾ सरल सार मतलब समरी कोई देख लेने आ। ये कहानी बुढ़े मनोहर सिंह की है जिसने ठाकुर शिवपाल सिंह से कर्ज लिया था। मनोहर सिंह ने की लिया सीगा ठाकुर शिवपाल को कर्जा लिया हैगा। कर्ज ना चुका पाने पर ठाकुर उसका प्रिय नीम का पेड़ काटना चाहता है जो मनोहर के पिता की निशानी है। मनोहर पेड़ बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। ठीक है। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ शिवपाल आ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੋਹਰ ਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਆ ਆਪਣੇ पिता ਦੀ निशानी बचाने लिए अपनी जान तक देने लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अंत में गांव का एक लड़का तेजा सिंह अपनी नानी की सोने की अंगूठी देकर पेड़ बचा लेंदा वा। मनोहर तेजा के निस्वार्थ भावना से इतना प्रभावित होता है कि वह अपना प्यारा पेड़ तेजा के नाम कर देता है। उन्हें ओदा पेड़ बचाने लिए अपनी सोने की अंगूठी देती एक छोटे लड़के ने वो तो इन्ना खुश हो जाता अपना नेम ਦਾ ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ मनोहर सिंह कौन सीगा एक पूर्व फौजी जो स्वाभिमानी है और अपने नीम के पेड़ से बहुत प्यार करता है। ठीक है। और उस तो बाद नीम का पेड़ है
मनोहर के लिए ये पेड़ उसके पिता की निशानी और भाई के समान है। बिकॉज ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठाकुर शिवपाल सिंह एक कठोर लेनदार जो केवल अपने पैसों और सूद मतलब ब्याज से मतलब रखता है। तेजा सिंह कौन है? एक दयालु लड़का जिसने मनोहर का दुख समझकर अपनी कीमती अंगूठी दान कर दी। संघर्ष, मनोहर तलवार लेकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है ताकि उसे कोई काट ना सके। तो ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ पेड़ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖने कि इस 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मनोहर सिंह पर ठाकुर का 25 रुपये कर्ज था। पैसे ना होने पर ठाकुर ने उसका नीम का पेड़ काटने की धमकी दी। मनोहर पेड़ बचाने के लिए अड़ गया और मरने मारने को तैयार हो गया। तेजा सिंह ਜਿਹੜਾ एक छोटा लड़का ਸੀਗਾ ने अपनी सोने की अंगूठी देकर कर्ज चुकाया। मनोहर ने खुश होकर अपना पेड़ तेजा के नाम कर दिया। ठीक है। एंड ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चंस देखने आ। बुढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? किहदे कोल गिरवी सीगा? ਇਹਦਾ आंसर है बुढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। ठीक है। उन्हें दसिया ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए न लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं ਜਿਹੜਾ तेरा नीम ਦਾ पेड़ ਆ ਉਹ ਕੱਟ देना है। ठीक है। नीम का पेड़ कटवाने की धमकी देता है। थर्ड आ मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ वापस कर दूंगा। ने रुपए लौटाने की 1 सप्ताह की मोहलत मांगी। किन्ने दी मंगी? 1 सप्ताह दी मंगी सी, बट वो नहीं लौटा पाया। नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? जब नीम का वृक्ष है वो किहदे हाथ दा लगाया होगा? मनोहर सिंह के पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। उस तो बाद है तेजा सिंह कौन था? उन्हें जो तेजा कौन आ? तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था, मतलब अमीर किसान का बेटा था। उसकी आयु 15 से 16 वर्ष की थी। ठीक है। ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने ਸਾਰੇ गांव ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੀਮ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ। ये कहानी दो सहेलियां ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਿਤਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਰੁਣਾ। ਕੀ ਹੈ? चित्रा एक चित्रकार है, पेंटर है, जो कागज़ पर निर्जीव चित्र बनाकर प्रसिद्धि पाना चाहती है, मशहूर होना चाहती है। दूसरी ओर अरुणा, जड़ी अरुणा ओदी सहेली है, एक समाज सेविका है। ठीक है। सोशल वर्कर है, जो गरीबों और अनाथों की सेवा को ही अपनी असली कला मानती है। चित्रा एक मरी हुई भिखारन और उसके रोते बच्चों का चित्र बनाकर विदेश में मशहूर हो जाती है, लेकिन अरुणा उन्हीं अनाथ बच्चों को गोद लेंदी है, उनका जीवन संवार देंदी है। अंत में चित्रा को एहसास होता है कि अरुणा ही सच्ची कलाकार है, क्योंकि उसने निर्जीव चित्र नहीं बल्कि जीवत जीवन बनाया। एक ना मतलब जी चित्रा ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਮਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਚਿੱਤਰਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? चित्रा का व्यक्तित्व किदां दा सीगा? वह केवल अपनी चित्रकला और प्रसिद्धि के बारे में सोचती है, मशहूर होना चाहती है बस। उसके लिए दुनिया की हर घटना केवल एक चित्र का विषय है। उस तो बाद अरुणा किदां दी सीगी? वह दयालु और कर्मठ है, वह बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है और अनाथ बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है। तो बाद विरोधाभास, चित्रा कागज के चित्रों में रंग भरती है, जबकि अरुणा लोगों के फीके जीवन में खुशियों के रंग भरती है। ठीक है। अनाथ चित्र, चित्रा की सफलता का आधार वह चित्र था जिसमें एक मरी हुई माँ से 2 बच्चे लिपटे थे। ठीक है। उन्हें जड़ा अनाथ चित्र बनाया सीगा। सच्ची कला, कहानी के अंत में अरुणा का मानवीय पक्ष चित्रा की मतलब मेन गल मेन पॉइंट्स यही दसे गए आ कि जिहड़ी चित्रा वा
ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਰੁਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਰੁਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ बाद 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਚਿਤਰਾ ਔਰ ਅਰੁਣਾ रूममेट्स थी, मतलब वो एक दूसरे ਦੀਆਂ रूममेट ਸੀਗੀਆਂ। चित्रा पेंटिंग के लिए विदेश चली गई और अपनी अनाथ पेंटिंग के लिए बहुत मशहूर हुई। जब वह भारत लौटी और अरुणा के बच्चों से मिली तो उसे पता चला कि वह वही बच्चे हैं जिनका उसने चित्र बनाया था। चित्रा की आंखों के सामने अरुणा की महानता चमक उठी। उसने मान लिया कि असली कलाकार अरुणा ही है जिसने अनाथों को सहारा दिया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होएगा। उस तो बाद क्वेश्चंस देखने आ। छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? केड़े केड़े नाम सीगे? छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम, एक दा नाम अरुणा सी ते एक दा नाम चित्रा सीगा। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाया हुआ चित्र दिखाने के लिए जगाती है। ठीक है, उन्होंने दस दिया क्या, देख मैं कितना सोहना चित्र बनाया है। अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा मतलब ਉਹਦੀ पेंटिंग बारे कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? मतलब ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ मदद करा कर। अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? ਜਦੋਂ मतलब अपने हॉस्टल से लेट होती है तो की कहती है? अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में कहती है कि वह बहुत गुनिया और चुप बड़े गौने, वह दूसरे के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है। उस तो बाद है अगले क्वेश्चन सा, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? ਉਹਦੇ पिता जी ने पत्र 'ਚ लिखा ਸੀਗਾ, जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती, कि मतलब ਉਹਨੂੰ विदेश भेज देंगे। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेविकाओं के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? ਜਦੋਂ बाढ़ आ गई सी फिर ਉਹਨੇ सेवा की थी, सो कितने दिनों बाद लौटी हीगी? 15 दिनों बाद। ठीक है, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? केड़ी पेंटिंग ने? अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई थी। ठीक है, भिखारन और 2 अनाथ बच्चों के। ठीक है, सो साडे को जेड़ा हुण अगली कहानी आ उसका नाम वा जी नर्स। ਇਹਦਾ देखने सब तो सिंपल सार किया। ये कहानी ममता और कर्तव्य के बीच के सुंदर संबंध को दिखाती है। 6 साल का बालक महेश अस्पताल में अकेले रहने से डरता है और अपनी माँ सरस्वती के लिए रोता है, ਉਹਦੀ माँ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ है। सिस्टर सुसान ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ नर्स आ उसकी इस पीड़ा को समझती है। वह महेश को अपनी काल्पनिक बेटे बबलू की कहानियाँ सुनाकर उसका मन बहलाती है और उसे माँ जैसा प्यार देती है। अंत में जब महेश की माँ सुसान का शुक्रिया अदा करने आती है तब उसे पता चलता है कि सुसान अविवाहित है, उसका विआह नहीं होया और उसका कोई बेटा भी नहीं है। उसने केवल महेश का अकेलापन दूर करने के लिए ये सब किया था। एक बारी तुहानूं शॉर्ट च दस देनी है। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵਾ ਜੀ ਮਹੇਸ਼। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਬਬਲੂ ਬਾਰੇ। ਬਬਲੂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਬਬਲੂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸਾਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਬਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਸ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। उस तो बाद ਇਹਦੇ की पॉइंट्स ਕਿਹੜੇ ਆ? महेश का डर। छोटा महेश अस्पताल के नियमों को नहीं समझता और माँ के बिना रात बिताने से घबराता है। सरस्वती की ममता। सरस्वती ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ही, महेश की माँ अपने बेटे की तड़प देखकर दुखी है पर वह अस्पताल में नहीं रुक सकती, ਉਹਦੀ मजबूरी है। सिस्टर सुसान की सूझबूझ, ਉਹਦਾ दिमाग। सुसान ने महसूस किया कि महेश को दवा से ज़्यादा ममता की ज़रूरत है।
बबलू का किरदार। सुसान ने बबलू नाम के एक बच्चे की झूठी कहानी गढ़ी ताकि महेश को लगे कि सुसान भी एक माँ है। उस तो बाद बदलाव। सुसान की सेवा के कारण महेश अपनी माँ को खुशी खुशी घर जाने की अनुमति दे देता है। सच्चाई का खुलासा अंत चुंदावा। कहानी के अंत में सुसान का निस्वार्थ सेवा भाव सामने आता है। ਉਸ ਤੋਂ बाद 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ सारा चैप्टर समझने हैं। महेश अस्पताल में अकेले रहने पर रोता है। नर्स सुसान ने उसे शांत करने के लिए अपने काल्पनिक बेटे बबलू का सहारा लिया। महेश उसे माँ समझने लगा और जल्दी ठीक हो गया। 13 दिन बाद ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਸਾਨ को उपहार देने आई तो पता चला कि सुसान कुंवारी है, उसका ਵਿਆਹ ਹੀ नहीं होया। सुसान ने सिद्ध कर दिया कि अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इतना ही आ। फर्स्ट क्वेश्चन है महेश कितने साल का था। महेश 6 साल का था। ठीक है, 6 साल का सीगा। महेश कहाँ दाखिल था। महेश अस्पताल में दाखिल था। अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था। अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे तक का था। ठीक है। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 'ਚ महेश ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ बाद 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई। 7 बजे मरिंडा और मानसरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई थी। ठीक है, एक लाइन सीगी ਉਹਦਾ क्वेश्चन है। उस तो बाद महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था। महेश सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था। महेश को अस्पताल में कितने दिन बाद छुट्टी मिली। महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। ठीक है, 13 दिन बाद। उस तो बाद अपने को नेक्स्ट चैप्टर आ माँ का कमरा। माँ का कमरा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ कहानी ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਰ ਦੇਖਨੇ ਆ। ये कहानी एक बुजुर्ग माँ की ਮਰਮ ਸਪਾਰਸ਼ੀ ਵਿਅਥਾ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ व्यथा है। माँ अपने बेटों को बेटे के बुलावे, बेटों नहीं होना बेटे होना, बेटे के बुलावे पर शहर रहने आती है। आधुनिक सुख सुविधाएं एसी सीगा, टीवी सीगा, फ्रिज से भरे घर में सब कुछ है, लेकिन माँ के लिए कोई अपना कोना या सुकून भरा कमरा नहीं है। बेटा माँ को एक वस्तु की तरह कमरे से दूसरे कमरे में भेजते रहते हैं। कहानी के अंत में ये कड़वा सच सामने आता है कि भौतिक सुखों से बड़ा माँ का सम्मान और उनका अपना स्थान होता है। ये कहानी रिश्तों से बढ़ती दूरियों को दर्शाती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਸਤੂ ਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਬੇਟੋ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ जा के अपने माँ प्यो ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। बेटे माँ की सुख सुविधाएं का ध्यान तो रखते हैं पर उन्हें समय और सम्मान नहीं दे पाते। वस्तु बनाम व्यक्ति आधुनिक घरों में निर्जीव वस्तुओं को रखने की जगह पर जीवित माँ के लिए जगह की कमी होती है। माँ का संतोष माँ बहुत ही धैर्यवान और चुपचाप अपमान सहती है, लेकिन अंदर से वह अकेली और दुखी है। बदलता समाज ये कहानी दिखाती है कैसे दिखावे की दुनिया में हम अपनों की भावनाओं को भूलते जा रहे हैं, खासकर अपने माता पिता। ठीक है, उस तो बाद आ चुकी 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ समझने हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी की ये कहानी माँ की अपेक्षा की कहानी है। शहर के आधुनिक घरों में सामान रखने के लिए जगह वा पर माँ दिली कोई कमरा नहीं है। बेटा माँ की भावनाओं को नहीं समझता। ये पाठ हमें सिखाता है बुजुर्गों का सम्मान और समय देना ही सच्ची सेवा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। सब तो पहला क्वेश्चन करने आ बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी। बुजुर्ग बसंती छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही थी बेटे दे घर आने तो पहले। ठीक है, 1 मिनट दो। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤੀ ਕੋ ਕਿਸਕਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ। बसंती की पड़ोसन कौन थी। बसंती दी एक पड़ोसन भी सी जिहदा नाम सीगा रेशमा। बसंती बेटे के साथ कहाँ आई। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ।
कोठी में कितने कमरे थे? कोठी 'ਚ 3 कमरे ਸੀਗੇ। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा? नौकर ने बसंती का सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ठीक है। ओवरव्यू च की कहता वा, एहसास कहानी एक दिव्यांग बालक दिवाकर की हिम्मत और सूझबूझ की कहानी है। ये पाठ हमें सिखाता है कि शारीरिक अक्षमता इंसान के साहस को कम नहीं कर सकती और असली पूर्णता शरीर से नहीं बल्कि हमारे कार्यों और आत्मविश्वास से आती है। मैं तुहानूं सिंपल भाषा च दसनी आ कि ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। उस तो बाद मैं तुहानूं इहदी क्रिस्प जिहड़ी है चैप्टर की समरी दिंदी हाँ। स्कूल की तरफ से बच्चों को एक दिवसीय मतलब शैक्षिक भ्रमण, ठीक है। दिवसीय शैक्षिक भ्रमण मतलब ट्रिप पर रोज़ गार्डन ले जाया गया। उन्हें एक ट्रिप पे खड़िया गया। दिवाकर एक दिव्यांग छात्र था जो बैसाखियों के सहारे चलता था और हाल ही में गांव से शहर आया था। मतलब वो चल फिर नहीं सकता। बैसाखियाँ मतलब जिहड़ी वो चलन के सहारे दी मदद करदी, ठीक है। वह अपनी शारीरिक कमी के कारण अन्य बच्चों के बीच थोड़ा उदास और अकेला महसूस कर रहा था। पार्क में जब सब बच्चे खेल रहे थे, दिवाकर एक बेंच पर बैठा अपनी पुरानी यादों में खो गया कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ दौड़दा सीगा, ਉਹ अपनी यादां 'ਚ ਸੀਗਾ। 2 सालों पहले एक दुर्घटना में दिवाकर ने अपनी एक टांग खो दी थी, जिससे उसे लगता था कि वह अधूरा है, वो पूरा नहीं हैगा। उस तो बाद अचानक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान झाड़ियों में से एक बड़ा और जहरीला सांप निकल आया। सांप को देखकर सभी बच्चे और यहाँ तक कि अध्यापक नीरू मैडम भी डर के मारे सहम गए। सांप फन फैलाकर फुंकार रहा था, जिससे सबकी जान खतरे में थी। गांव के परिवेश में पला होने के कारण वो गांव च रहिंदा सीगा, तां करके दिवाकर को सांपों का अनुभव था। वह डरा नहीं, उसने अपनी बैसाखी का प्रयोग किया और बड़ी फुर्ती से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। दिवाकर की इस बहादुरी ने सबकी जान बचाई और नीरू मैडम ने उसे दिवाकर की इस बहादुरी ने सबकी जान बचाई और नीरू मैडम ने उसे असली हीरो कहा, ठीक है। अगले दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल साहब ने उसे सम्मानित किया, जिसे दिवाकर को अपनी पूर्णता का एहसास हुआ कि मेरे विच कोई कमी नहीं है। इंसान दे विच कमी उदों हुंदी है ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਨ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿਵਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ सम्मानित ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦਿਵਾਕਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। यहाँ दिवाकर अपनी कमज़ोरी बैसाखी को अपनी ताकत बना लेंदा वा। पाठ का संदेश आ आत्मविश्वास और साहस ही मनुष्य की असली शक्ति है। उस तो बाद उन्होंने सैल्फ रियलाइजेशन होंदी है, आत्मबोध। सम्मान मिलने के बाद दिवाकर के मन से हीन भावना खत्म हो गई और उसे अपनी उपयोगिता का एहसास हुआ ਜਾਂ पूर्णता ਦਾ एहसास हो जाता, ठीक है। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਸਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, मेन मैसेज वो किया। ये कहानी दिवाकर नाम के एक बहादुर लड़के की है जो दुर्घटना में अपनी टांग गंवाने के कारण दुखी रहता है। जब एक पिकनिक के दौरान सांप अपने आने पर सब डर जाते हैं, तब दिवाकर अपनी बैसाखी से सांप को दूर फेंक कर सबकी जान बचाता है। इस बहादुरी के लिए उसे स्कूल में सम्मान मिलता है। अंत उसे समझ आता है कि मनुष्य अंगों से नहीं बल्कि अपनी साहस और गुणों से पूर्ण होता है, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਾਕਰ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਛਾਤਰ ਥਾ
जो बैसाखियों के सहारे चलता था। स्कूल ट्रिप के दौरान पार्क में अचानक एक जहरीला सांप आ गया, या सब डर गए। वहीं दिवाकर ने हिम्मत दिखाकर बैसाखी से सांप को भगा दिया। उसकी बहादुरी ने अध्यापिका और सहपाठियों की जान बचाई। सम्मान मिलने पर दिवाकर की हीन भावना खत्म हुई और उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੈप्टर रट गया है, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ क्वेश्चन आंसर। सब तो पहला वा, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के लिए रोज गार्डन जा रहे थे, पिकनिक वास्ते या ट्रिप वास्ते। छात्राएं बस में क्या कर रहे थे? बस में अंताक्षरी खेल रही थी, जड़िया कुड़िया सीगे छात्राएं। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? बस में बैठकर खिड़की के बाहर वृक्षों को तथा दूर तक फैले आसमान को देख रहा था। दिवाकर को अपने मन से अधूरेपन का एहसास क्यों होता है? दिवाकर अपाहिज था और दूसरे बच्चों की भांति उछल कूद नहीं पाता था, इसलिए उसे अपने मन में अधूरेपन का एहसास होता था, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? सांप को देखकर डर गए, ठीक है। बहुत ईजी सीगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਚੈप्टर का नाम है जी मित्रता। ये पाठ हमें बताता है कि किशोर अवस्था और युवा अवस्था में मित्रता का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। लेखक ने समझाया कि अच्छा मित्र हमें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जबकि एक बुरा मित्र हमें पतन के गड्ढों में गिरा सकता है, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ एक ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चैप्टर ਦੀ समरी दे ਦਿੰਦੀ ਆ। घर से बाहर निकलने की युवा पुरुष के सामने सबसे बड़ी समस्या ਹੁੰਦੀ ਆ मित्र चुनने दी। बचपन में हमारा स्वभाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है, जैसी संगति रूपी हाथ जैसा चाहे वैसा बना सकता है। जिसे संगति रूपी, ठीक है, कि मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, अगर संगत माड़ी होगी देन राक्षस बन जाएंगे। अक्सर हम केवल हंसमुख चेहरा और चतुराई देकर मित्रता कर लेते हैं, जो कि गलत है। एक सच्चा मित्र जीवन की औषधि दवाई के समान होता है, यो हमारी बुराइयों को दूर कर देता है। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके और जो भाई के समान स्नेह दे। लेखक के अनुसार मित्रता के लिए स्वभाव और कार्यों की समानता जरूरी नहीं है, जैसे राम लक्ष्मण या चाणक्य चंद्रगुप्त, ठीक है। जैसे देखो चाणक्य इन्ना इंटैलीजेंट इन्ना हुशियार ते चंद्रगुप्त ने उन्हें बना दिता। इदा ही राम ते इदा ही लक्ष्मण सीगे, ठीक है। कुसुंग होंदी है बुरी संगति का प्रभाव सबसे भयानक होता है, जैसे बुद्धि को नष्ट कर देता है। अच्छी संगति उस सहारा देने वाली बाँ के समान है जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। बुरी संगति हमारे मन में बहुत जल्दी बैठती है, इसलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। काजल की कटोरी के उदाहरण से लेखक ने बताया कि बुराई के संपर्क में आने पर दाग जरूर लगता है। अंत हृदय को उज्जवल रखने का सबसे अच्छा तरीका बुरी संगति से दूर रहना ही है। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਡੋਬ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਰ मैसेज देखने कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ डीपली ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ये निबंध सिखाता है कि जीवन की सफलता हमारे मित्रों के चुनाव पर निर्भर करती है। जिस प्रकार ये एक अच्छी औषधि रोग दूर करती है, ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ रोग लगा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ दूर कर ਦਿੰਦੀ है, वैसे ही एक अच्छा सच्चा मित्र हमारे चरित्र के दोषों को दूर करता है। हमें केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्म सुधार के लिए भी मित्र बनाने चाहिए। कुसंगति से बचना अनिवार्य है क्योंकि वह मनुष्य के विवेक और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देती है। कुसंगति मतलब माड़ी संगत। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਪਾਂ 5 लाइनों की सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। युवा अवस्था में मित्र का चुनाव जीवन की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चुनौती है। सच्चा मित्र वह है जो भाई की तरह प्रेम और औषधि की तरह दोषों को दूर करे। मित्रता के लिए स्वभाव की समानता नहीं बल्कि पारस्परिक सहानुभूति आवश्यक है। मतलब वो जो समानता नहीं होनी चाहिए, बस ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ डिफिकल्ट वर्ड्स ना बिना लिखियो। बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है जो इंसान की बुद्धि और चरित्र का नाश करता है। अपने हृदय को निष्कलंक रखने के लिए युवाओं को कुसंगति से सदैव बचना चाहिए। मित्रता। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ करने हैं जी क्वेश्चंस। सब तो पहला क्वेश्चन है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है? मित्र चुनने की कठिनाई आती है, ठीक है। हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ बुरा क्यों हो सकता है? ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ਇਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਕਿਵੇਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ, ਨਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ अपने आप ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝੇ, ठीक है। आजकल लोग दूसरों में कौन कौन सी 2-4 बातें देखकर उसे अपना मित्र बना लेंगे हैं। आजकल लोग देखते हैं हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस जैसी 2-4 बातें देखकर ही शीघ्रता से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। किसी प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ भारी रक्षा रहती है? विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए। वैसे भारी रक्षा रहती है क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। विश्वास जेड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। चिंताशील, निर्बल तथा धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? ਜਿਹੜਾ चिंताशील मनुष्य ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਪੁरुष ਆ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ पुरुष ਦਾ ਸਾਥ ढूंढते हैं। बट इदा नहीं करना चाहिए। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? चंद्रगुप्त ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਣक्य ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਨ ਬਹਿਲਾने के लिए बीरबल ਦੀ ओर देखता ਸੀ, बिकॉज अकबर ਤੇ बीरबल दोस्त ਸੀਗੇ, ठीक है। मकदूनिया के बादशाह डेमोट्रिस के पिता को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला था? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ को दरवाजे पर मौज मस्ती में बादशाह का साथ देने वाला कुसंगति रूपी खसमुख जवान नामक ज्वर मिला था, ठीक है। हसमुख जवान नामक, ठीक है, आता पढ़ लिया। राज दरबार में जगह ना मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सराहता रहा? एक ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं मिली, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इस पर वह सारी उम्र अपने भाग्य को सराहता रहा। मतलब चंगा कहता रहा। उसे लगता था कि राज दरबारी बनकर वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता, जिसे वह आध्यात्मिक उन्नति ना कर पाता। बुरी संगति से बचने के कारण वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। मतलब इस मित्रता व इस बुरी या चंगी संगति बारे दस्या गया है। उस तो बाद हृदयों को उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय केड़ा वा? बुरी संगति तो या बुरी शक्ति तो दूर रहना, ठीक है। उस तो बाद आप ਜਿਹੜਾ ਵਾ अगला चैप्टर ਉਹ कर लेने ਆ। अगले चैप्टर का आप ओवरव्यू लेने आ। ये पाठ एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा देता वा। लेखक कन्हैया लाल मिश्रा, ठीक है। एक मिनट, ਜਿਹੜਾ चैप्टर आ इसका नाम आ जी अपने तो मैं और मेरा देश, ठीक है।
ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੋ। ਲੇਖਕ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਮਿश्रा ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ याद कर लो। बताया कि देश का मान सम्मान किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे देश का सिर ऊंचा होता है, और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे देश के माथे पर कलंक लगता है। उस तो बाद आ यदि जेड़ी समरी आ मानसिक भूकंप। लेखक को पहले लगता था कि वह अपने घर और नगर में पूर्ण है, लेकिन लाला लाजपत राय के इस अनुभव ने उन्हें हिला दिया कि विदेशों में भारतीयों को गुलाम कहकर अपमानित किया जाता है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। स्वामी राम तीरथ के उदाहरण। जापान में एक युवक ने उन्हें ताजे फल भेंट किए। ठीक है, स्वामी राम तीरथ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ युवक ਸੀਗਾ, उन्होंने ताज़े फल भेंट किए और बदले में सिर्फ ये चाहा कि स्वामी जी अपने देश जाकर जापान की बुराई ना करे। ये देशभक्ति का उत्तम उदाहरण है। मतलब एक लड़का ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਫਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ बुराई ना करके इन्होंने सानू खान वास्ते कुछ नहीं दिता, साडे देश की तारीफ होए। कलंकित करने वाला छात्र। वहीं दूसरी ओर जापान में एक विदेशी छात्र ने पुस्तकालय से चित्र चुराए, जिससे उसके पूरे देश को वहाँ प्रबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित। ठीक है, एक मुंडा सीगा, मतलब उन्हें जड़ा वा बुक्स ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ बदनामी हुई। ठीक है, कार्य की भावना। लेखक के अनुसार कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम्य कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति का नाम ने एक बुढ़े किसान के भाव पर शहद को भी बड़े सम्मान से स्वीकार शहद को भी बड़े सम्मान से स्वीकार किया, क्योंकि उसमें सच्ची भावना थी। ठीक है, कोई काम जड़ा छोटा बड़ा नहीं होंदा। चाह दस्या गया वा दो मुख्य आधार। देश की उन्नति के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सब तो पहली चीज़ शक्ति बोध, देश की ताकत पर भरोसा, और दूसरी सौंदर्य बोध, स्वच्छता। एक देश साफ होना चाहिए, स्वच्छता और शिष्टाचार होना चाहिए वा। शल्य की भूमिका। महाभारत के पात्र शल्य की तरह जो लोग अपने देश की हीनता की चर्चा करते हैं वो देश का आत्मविश्वास तोड़ते हैं। मतलब ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ शल्य की भूमिका की ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। नागरिक कर्तव्य। नागरिक ਦਾ ਕੀ ਕਰਤव्य ਹੁੰਦਾ ਵਾ? कूड़ा बाहर फेंकना, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, या समय का पाबंद ना होना। अच्छा, आ जेड़ा वा कूड़ा बाहर फेंकना, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, या समय का पाबंद ना होना, ये सब देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं कि सानू इस तरह नहीं करना चाहिए। चुनाव की कसौटी। सही व्यक्ति को वोट देना एक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस तो बाद आप कोर मैसेज देखने के जो सानू लेखक कहना कि सौंदा वा, ये पाठ हमें समझाता है कि हमारी हर गतिविधि हमारे देश के प्रतिबिंब, साढ़े देश के रिफ्लैक्शन की तरह होंदी है। यदि हम शिष्ट और ईमानदार हैं तो दुनिया हमारे देश का सम्मान करेगी। यदि हम अशिष्ट और गंदे हैं तो हमारे देश का नाम खराब होगा। सच्चा देशभक्त वह है जो अपनी दैनिक जीवन में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखता है और अपने देश की शक्ति पर विश्वास रखता है। उस तो बाद आप सुपरफास्ट 5 लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ रिवीजन करने ਆ। व्यक्ति का मान सम्मान उसके देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। छोटे काम भी महान बन जाते हैं यदि उनके पीछे देश प्रेम की सच्ची भावना हो। देश की बुराई करना और उसे हीन समझना उसकी शक्ति बोध को नष्ट करता है। गंदगी फैलाना और नियमों का उल्लंघन करना देश के सौंदर्य बोध का अपमान है। हर नागरिक का कर्तव्य कि वह अपने आचरण से देश के गौरव की रक्षा करे। और मेरे देश के क्वेश्चंस करने। लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? जो लेखक ਨੂੰ पता चलिया कि उसे बहुतों को की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है और वह भी बहुतों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बिकॉज अगर आप एक देश 'ਚ रहना सानू एक दूजे की ज़रूरत पैनी ही आ। ठीक है, ਤਾਂ करके फिर उन्हें अपनी पूर्णता का बोध हुआ। दूसरा व मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? मन में विचारों और विश्वास से हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप कहलाता है, जिसे मन में अनेक विचार आंदोलित होने लगते हैं। ठीक है, मानसिक भूकंप ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहारों और साधनों को व्यर्थ क्यों कहा? मनुष्य के लिए संसार के सभी उपहारों और साधनों तब व्यर्थ हो जाते हैं जब उसका देश गुलाम हो या किसी भी अन्य रूप से हीन होता है। युद्ध में यह बोलने वालों का क्या महत्व है? युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए अतिरिक्त यह बोलने वाले भी सैनिकों का साहस और उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है। दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? पैरों की बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी भी उबर जाते हैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ है। ठीक है। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीरथ क्या ढूंढ रहे थे? ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ढूंढ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति थे। अभी दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? को मिट्टी की छोटी सी हंडिया में भाव पर शहद उपहार में दिया था। ठीक है। अभी आप एक लाइन रीड की थी सीगी। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को रंगीन सुतलियों से बनी एक खाट का उपहार में दी। एक खाट उपहार में दी। ठीक है। उस तो बाद आ जाएगा लेखक के अनुसार, एक मिनट, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? एक उन्हें दस्या सी शक्ति बहुत, दूसरा दस्या सी सौंदर्य बहुत। इन दो बातों की आवश्यकता है। द लास्ट क्वेश्चन इज शल्य कौन था? महाबली सीगा ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एग्जाम्पल लिया सीगा। महाबली करण का सारथी हीगा। माद्री का भाई सीगा। मध्य देश का राजा और नकुल सहदेव का मामा था। ये पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला चैप्टर पढ़ते पे। ठीक है। व्यक्तित्व पर आधारित एक संस्मरण है। इसमें महादेवी वर्मा ने ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ लेखक ਸੀਗੀ चैप्टर दी ने उनकी अद्भुत सादगी, खादी के प्रति प्रेम और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके साधारण रहन सहन का वर्णन किया है कि मतलब वो सिंपल रहंदे सीगे। ये पाठ हमें सिखाता है महानता बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि ऊंचे चरित्र और सरलता में होती है। ठीक है। उस तो बाद ਇਹਦੀ समरी देखने आ। लेखक ने राजेंद्र बाबू को पहली बार पटना स्टेशन पर एक साधारण ग्रामीण के वेश में देखा था। उनकी आकृति में एक सामान्य भारतीय किसान की छवि झलकती थी। चौड़ा माथा सीगा, घनी मूछें और शांत आंखें। उनकी वेशभूषा बहुत अस्त व्यस्त थी रहती थी। कभी मोजे ढीले होते तो कभी कोट के बटन टूटे होते थे। राजेंद्र बाबू स्वभाव से बहुत संकोची थे और अपनी कमियों पर एक बालक की तरह लज्जा जाते थे। उनके निजी सचिव चक्रधीर उनकी इतनी सेवा करते थे कि वह उनके पुराने कपड़े भी आशीर्वाद समझकर पहन लेते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और अपने पोत्रियों को साधारण जीवन जीने की शिक्षा दी। उनकी पत्नी का नाम भी लिखा हुआ सहधर्मिणी भी बहुत सरल स्वभाव की थी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी खुद खाना बनाकर राजेंद्र बाबू अपने पोत्रियों के लिए हॉस्टल में मिठाई लाते तो वह बच्चों में बराबर बांट दी जाती। वे उपवास के दिनों में केवल उबले हुए आलू खाकर संतोष कर लेते, कोई ताम झाम नहीं करते थे। उनकी सरलता और निष्पक्षता के कारण उन्हें देश रत्न और अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो कहा गया था। उस तो बाद आप कोर मैसेज जड़ा वो देखने आ। राजेंद्र बाबू पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी और ऊंचे मानवीय मूल्यों का दर्पण है। महादेवी वर्मा जड़ी दी लेखका उदास दिया कि कैसे एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर पहुंचकर भी अपनी ज़मीन और सादगी से जुड़ा रह सकता है। वे खादी पहनते थे, सादा भोजन करते थे और अपने परिवार को भी आडंबर से दूर रखते थे। उनका जीवन सादा उच्च विचार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उस तो बाद आप दी फास्ट सुपर 5 लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ रिवीजन करने आ। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका जीवन एक साधारण किसान जैसा था। वे खादी के कपड़े पहनते थे और अक्सर उनके मोजे या टोपी बेहतरीब
अस्त व्यस्त होते थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी भारतीय सादगी को बनाए रखा। उन्होंने अपनी पोत्रियों को भी विलासिता के बजाय सादगी और सेवा का पाठ पढ़ाया। उनकी सहनशीलता और कोमल चरित्र के कारण उन्हें देशरत्न और अजात शत्रु कहा जाता है। सो क्वेश्चंस करने हैं। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ देखा ਸੀਗਾ पटना स्टेशन पर देखा। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? एक साधारण भारतीय कृषि मतलब किसान ਦਾ प्रतिनिधित्व मतलब ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई कौन थे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ भाई ਸੀਗੇ ਉਹ कौन से? ਉਹਦਾ नाम ਸੀਗਾ चक्रधर थे। राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? लेखिका से अपनी 15-16 पुत्रियों की शिक्षा और की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया। लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? प्रयाग से सिरकी के बने 12 सूपों का उपहार लेकर, ठीक है, सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका हैरान रह गई? उबले आलू खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई, बिकॉज वो राष्ट्रपति सीगा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜੀ ਸਦਾਚਾਰ का ਤਾਵੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ओवरव्यू ਉਹ लेने ਆ। एक कहानी आ जो बताती है भ्रष्टाचार किसी बाहरी चीज़ में नहीं बल्कि इंसान की परिस्थितियों और नियत में होता है। भ्रष्टाचार मतलब रिश्वत वगैरह लेनी, ठीक है। लेखक ने दिखाया है कि कैसे राजा और दरबार तंत्र भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या का समाधान नैतिक सुधार की बजाय तावीज़ जैसे अंधविश्वास और बाहरी उपायों में खोजने की मूर्खता करते हैं, ठीक है। चैप्टर ਨੂੰ रीड करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ रीड करने ਆ। एक राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था जिसे राजा देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म बारीक था। कभी भ्रष्टाचार दिखाई तो देता नहीं, कोई रिश्वत लेना वो किस तरह दिखाई देगा। राजा ने भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए विशेषज्ञों मतलब साइंटिस्ट की एक टीम बुलाई। वेशकों ने बताया कि भ्रष्टाचार ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है और वह राजा के सिंहासन के बिलों खातों में भी मौजूद है। मतलब जेड़े सिंहासन के बिल आ उन्हां च भी मौजूद आ। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए विशेषज्ञों ने पूरी व्यवस्था बदलने और ठेकेदारी प्रथा बंद करने का सुझाव दिया। राजा और दरबारी व्यवस्था बदलने के झंझट से डर गए और उन्होंने कोई आसान रास्ता ढूंढने का सोचा, तां करके उन्होंने तावीज़ बनाते। एक साधु ने राजा को सदाचार का तावीज़ दिया और दावा किया कि इसे बांधने से आदमी ईमानदार हो जाता है। राजा ने तावीज़ बांधने का बड़ा ठेका साधु को दे दिया और लाखों सरकारी कर्मचारियों की भुजा पर तावीज़ बांध दिए गए। तावीज़ बांधने के बाद राजा जब 2 तारीख तनख्वाह मिलने के अगले दिन को वेश बदलकर जांच करने गया तो कर्मचारी ने घूस लेने से मना कर दिया। लेकिन जब राजा 31 तारीख महीने को अंत को गया तो उसी कर्मचारी ने घूस ले ली। अंत में राजा को तावीज़ से आवाज़ आई, अरे आज तो 31 है, आज तो ले लो। इसे सिद्ध हुआ कि भ्रष्टाचार तावीज़ से नहीं रुकता, वह आर्थिक ज़रूरतों और व्यवस्था से जुड़ा है, क्योंकि वो किसी इंसान के दिमाग चा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ बाद इस चैप्टर का कोर मैसेज किया। ये कहानी बताती है भ्रष्टाचार केवल उपदेशों या तावीज़ों से ख़त्म नहीं हो सकता। राजा ने जब विशेषज्ञों की बात मानकर व्यवस्था नहीं बदली और केवल तावीज़ का सहारा लिया तो वह नाकाम रहा। असली भ्रष्टाचार इंसान की गरीबी और गलत व्यवस्था में छिपा होता है। जब तक इंसान की ज़रूरतें सही तरीके से पूरी नहीं होंगी वह बेईमानी की ओर आकर्षित होता रहता है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਰਿवीजन करने 5 लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ केवल राजा अपने राज्य में फैला भ्रष्टाचार नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह सूक्ष्म था। विशेषज्ञों ने व्यवस्था बदलने की सलाह दी लेकिन राजा ने आसान समाधान चुना। एक साधु ने सदाचार का तावीज़ बनाया जिसे सभी कर्मचारियों को पहनाया गया। महीने की शुरुआत में तावीज़ ने काम किया लेकिन महीने के अंत क्योंकि उदों सारे को पैसे मुक गए सी तां करके उन्होंने घूस लेना पिया, वह बेकार हो गया। पाठ का संदेश है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खोखले उपायों की बजाय ठोस व्यवस्था परिवर्तन ज़रूरी है, ठीक है।
क्वेश्चंस करने हैं। राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? भ्रष्टाचार फैलने की। राजा ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे दिया? विशेषज्ञों को सौंपा, साइंटिस्ट। ठीक है। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? एक साधु को पेश किया। साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? एक तावीज दिखाया। साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? एक कुत्ते पर किया। तावीज को बनाने का ठेका किसे दिया गया? साधु बाबा को दिया गया। राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यकला कब गए थे? पहली बार वो 2 तारीख को गए थे। ठीक है। उस तो बाद आप जड़ा वा अगला चैप्टर ओ करने अगला चैप्टर है ठेले पर हिमालय। ਇਹਦਾ ओवरव्यू लेने ये एक ललित निबंध है और यात्रा वृतांत है। लेखक ने अल्मोड़ा और कुसैनी को अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ का मुख्य केंद्र हिमालय की बर्फ का जादुई सौंदर्य है कि कितनी सोहनी आ जो मनुष्य के मन की सारी थकान और चिंता को दूर कर देता है। शीर्षक ठेले पर हिमालय एक प्रतीक है जो शहर में बर्फ की सिल्ली देखकर हिमालय की याद दिलाता है। अब बस ओवरव्यू सीगा रीड करने आ। शीर्षक की उत्पत्ति। लेखक ने एक पान की दुकान पर ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखी जिसे उन्हें तुरंत हिमालय की याद आई और ये शीर्षक सूझा। कोसैनी की यात्रा। लेखक अपने मित्रों के साथ नैनीताल से रानीखेत होते हुए कोसैनी पहुंचे। कोसी तक का रास्ता बहुत सूखा और कष्टप्रद था। उस तो बाद सोमेश्वर की घाटी दी गल की गई है। कोसी के बाद सोमेश्वर की घाटी का दृश्य बदल गया। वहां की हरियाली और नदियां अत्यंत सुंदर थी। पारब्रिंग निराशा। कोसैनी पहुंचते ही लेखक को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि वहां का गांव उजाड़ सा था और बर्फ का नाम निशान नहीं था। घाटी का यादू। जैसे ही लेखक ने घाटी की ओर देखा वह दंग रह गया। कतियूर की रंग बिरंगी घाटी उन्हें किसी दूसरी दुनिया जैसी लगी। हिमालय के दर्शन। बादलों के बीच अचानक लेखक को एक बादलों के बीच अचानक लेखक को एक छोटा सा सफेद टुकड़ा दिखा जो वास्तव में हिमालय का शिखर था। बर्फ का सौंदर्य। धीरे धीरे बादल छंट गए और हिमालय की बर्फानी श्रृंखला सामने आ गई। सूरज की रोशनी में बर्फ का रंग केसरिया और फिर लाल फूलों जैसा लगने लगा। मानसिक शांति। बर्फ के इन दिव्य दर्शनों से लेखक और उनके मित्रों की सारी थकान और उदासी गायब हो गई। जब उन्होंने बर्फ दिखी वे पूरी तरह आत्मलीन हो गए। बैजनाथ की यात्रा। अगले दिन वे गोमती नदी किनारे बैजनाथ पहुंचे जहां नदी के जल में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। अतीत की याद। अंत में लेखक कहते हैं कि शहर के चौराहे पर ठेले की बर्फ देखकर उन्हें आज भी हिमालय की उन ऊंचाइयों का दर्द और याद सताती है। ठीक है। ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਚ ਕੋਸੈਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ठीक है। और ਇਹ 'ਚ कुछ नहीं हैगा। ਇਹਦਾ एक और मैसेज देख लेने हैं। ये पाठ हमें प्रकृति के करीब जाने और उसके सौंदर्य को महसूस करने की प्रेरणा देता है। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बताया है कि कोसैनी की घाटी में हिमालय का जो भव्य रूप उन्होंने देखा उसने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी। शहर में ठेले पर लदी बर्फ केवल उस महान हिमालय की एक फीकी याद है। असली आनंद तो हिमालय की उन चोटियों पर है। यहाँ बर्फ पवित्र और अनंत है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेखक ने अल्मोड़ा को एक ठेले पर बर्फ देखकर इस पाठ का नाम रखा के एक ठेले पर। ठीक है। कोसैनी की यात्रा के दौरान सोमेश्वर और कतियूर की घाटियों का अद्भुत वर्णन किया गया वा। बादलों के हटने पर हिमालय के भव्य दर्शन ने लेखक की सारी थकान मिटा दी। डूबते सूरज की रोशनी में हिमालय की बर्फ केसरिया और लाल दिखाई देने लगी। पाठ का संदेश है कि प्रकृति का सच्चा सौंदर्य मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है। उस तो बाद ਇਹਦੇ क्वेश्चंस करने हैं। लेखक कोसैनी क्यों गए थे? हिमालय की बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए। बस वर्ष बाद लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया? लेखक ने साथ साथ बहने वाली कोसी नदी का जिक्र किया है। कोसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसैनी बसा हुआ है। लेखक और उनके मित्रों की निराशा और थकावट किसके दर्शन से छूमंतर हो गई? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ
दर्शन से शिव मंतर हो गई, हिमालय की बर्फ के दर्शन से। ठीक है, लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे? डाक बंगले में ठहरे थे। दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुंचे? दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र बैजनाथ पहुंचे, जहाँ गोमती नदी बहती है। बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी बहती है। ठीक है जी, श्री गुरु नानक देव जी वाली कहानी। ये अध्याय सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी महान यात्राओं ਜਿਹੜੀ उन्होंने उदासी ਕੀਤੀ ਸੀ का परिचय देता है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछात और पाखंड को दूर कर एक ईश्वर, एक ओंकार का संदेश दिया और प्रेम व समानता की नींव रखी। ठीक है, आ ओवरव्यू ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में जिला शेखुपुरा के तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। उनकी बहन का नाम बीबी नानकी था। बचपन से ही गुरु जी आध्यात्मिक विचारों के थे और उन्होंने मौलवी सैयद हुसैन व पंडित ब्रजनाथ से शिक्षा प्राप्त की। पिता ने उन्हें दुनियादारी में लगाने के लिए 20 रुपये दिए, पर उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन कराकर सच्चा सौदा किया। गुरु जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। सुल्तानपुर लोधी में उन्होंने शादी मोदी खाने में नौकरी की और शाही शाही मोदी खाने में नौकरी की और यहीं वही नदी में उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार, वही प्रवेश हुआ। वही नदी से बाहर आकर उन्होंने मूल मंत्र दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक है। गुरु जी ने चारों दिशाओं में 4 लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने मक्का, मदीना, लंका और ताशकंद जैसे स्थानों पर जाकर सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने करतारपुर नगर बसाया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष वही खेती करते हुए व्यतीत किए। वह एक महान कवि भी थे। उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिसमें जपजी साहिब प्रमुख रचना है। सन 1539 में गुरु जी ज्योति जोत समा गए। सो चलो ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 1469 ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਔਰ ਆਰਤੀ जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। ठीक है, रीड कर लियो सही तरह। उस तो बाद एक और मैसेज आ, गुरु नानक देव जी ने उस समय जन्म लिया जब समाज जात पात और अंधविश्वास में फंसा था। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना और किर्त करने, नेकी की कमाई, वंश छकने, बांट कर खाना और नाम जपने का संदेश दिया। उनकी 4 उदासियों ने विश्व को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। वे केवल सिखों के गुरु नहीं बल्कि पूरी मानवता के पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, उस तो बाद आप करने जी दी रिवीजन सुपर फास्ट। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ। उन्होंने सच्चा सौदा और वही प्रवेश जैसी घटनाओं से मानवता का मार्ग दिखाया। उदासी के माध्यम से उन्होंने देश विदेश में प्रेम और समानता का प्रचार किया। उनकी पवित्र वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जो हमें सत्य की राह दिखाती है। 1539 ईस्वी में वे करतारपुर में ज्योति जोत समा गए। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को सन 1469 ईस्वी में जिला शेखुपुरा के तलवंडी, अब पाकिस्तान गांव में हुआ। गुरु नानक देव जी के माता और पिता का क्या नाम था? माता जी का नाम तृप्ता देवी और पिताजी का नाम मेहता कालू था। गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था? पंजाबी, फारसी, हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान। गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियादारी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया? उनके पिता मेहता कालू जी ने। गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिताजी ने क्या कहा? उनके पिताजी ने उनकी शादी देवी सुलखनी से कर दी। गुरु नानक देव जी के कितने संतानें थी और उनका नाम क्या था? 2 संतानें थी, लक्ष्मीदास और श्रीचंद। इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? आपने सांझी धर्म की शिक्षा दी। किसी एक धर्म दी नहीं, सांझे धर्म की शिक्षा दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं?
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल 974 पद और श्लोक हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? 31 राग हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? करतारपुर में बीते, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी है? भाई गुरदास जी ने लिखा है, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। ठीक है, जब गुरु नानक देव जी का जन्म होया उदों उन्होंने लिखा सी, गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए। 7 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। मौलवी सैयद हुसैन और पंडित ब्रजनाथ ने भी उन्हें पढ़ाया। छोटी सी आयु में ही इन्होंने पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस तो बाद जी आप अगला चैप्टर करने हैं सूखी डाली, विच इज़ आवर लास्ट चैप्टर। ठीक है, सूखी डाली एक पारिवारिक एकांगी है जो संयुक्त परिवार की महत्ता को दर्शाती है। दादा मूल राज परिवार के मुखिया हैं जो अपने कुनबे को एक वट वृक्ष मतलब जेड़ा अपना ओदा परिवार है उन्हें एक पेड़ की तरह, बरगद के पेड़ की तरह देखता हुआ एकजुट रखना चाहते हैं। ये एकांगी सिखाती है परिवार से अलग होकर व्यक्ति उस सूखी डाली की तरह हो जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। चैप्टर पढ़ने आ दादा मूल राज का व्यक्तित्व। दादाजी परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। वे अनुशासन प्रिय है लेकिन उनके दिल में सबके लिए अपार प्रेम है। वट वृक्ष का प्रतीक। दादाजी अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से करते हैं। यहाँ सभी सदस्य उसकी शाखाओं की तरह मिलजुल कर रहते हैं। बेला का आगमन। दादाजी ने सबसे छोटे पोते परेश का विवाह लाहौर की एक शिक्षित और संपन्न घर की लड़की बेला से होता है। वैचारिक मतभेद। बेला शिक्षित और आधुनिक विचारों की है। उसे संयुक्त परिवार के पुराने रीति रिवाज, खाना पीना और रहन सहन पसंद नहीं आता। कल्य की शुरुआत। बेला घर के अन्य बहुओं और ननंद को अनपढ़ और गंवार समझती है जिसे घर में तनाव पैदा हो जाता है। विषानी की घटना। बेला पुराने नौकरों को काम से हटा देती है जिसे घर की महिलाएं बहुत नाराज होती हैं। परेश की चिंता। परेश अपनी पत्नी बेला की शिकायतों को लेकर दादाजी के पास जाता है और अलग घर बसाने की इच्छा प्रकट करता है। दादाजी की बुद्धिमानी। दादाजी परेश को अलग होने से रोकते हैं और घर के बाकी सदस्य को आदेश देते हैं कि वो बेला का वैसा ही आदर करे जैसा वे चाहती है। सम्मान का प्रभाव। जब परिवार के सदस्य बेला को अतिथि जैसा सम्मान देने लगते हैं तो वह खुद को परिवार से कटा हुआ समझती है। ठीक है, और अकेला महसूस करने लगती है। हृदय परिवर्तन। बेला को एहसास होता है कि परिवार से अलग होकर वह खुश नहीं रह सकती। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बड़ों से क्षमा मांग लेती है। अंत बेला परिवार में घुल मिल जाती है और सूखी डाली बनने की बजाय पेड़ का हिस्सा बनी रहती है। सो आ सीगी सारे चैप्टर की कहानी। हुण करने दा कोर मैसेज देखने की दिता वा। ये एकांगी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे दादा मूल राज ने बरगद के पेड़ की तरह सहेज कर रखा है। जब शिक्षित बहु बेला के आने से परिवार टूटने की कगार पर पहुंचता है तो दादाजी अपनी ममता और बुद्धिमानी से उसका हृदय बदल देते हैं। वे सिद्ध करते हैं कि परिवार के सदस्यों में छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं लेकिन साथ रहने में जो सुरक्षा और प्रेम है वे अकेलेपन में नहीं। उस तो बाद 5 लाइन दे विच सारा चैप्टर समझते हैं। दादा मूल राज अपने परिवार को एक विशाल वट वृक्ष की तरह एकजुट रखना चाहते हैं। छोटी बहू बेला अपनी शिक्षा के अहंकार में परिवार के बाकी सदस्यों को तुच्छ समझती है। बेला के कारण परिवार में मतभेद पैदा होते हैं और वह अलग होने की सोचती है। दादाजी के आदेश पर जब सब उसे बहुत सम्मान देते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बेला अंत में समझ जाती है परिवार की एकता में ही सच्चा सुख और सम्मान है। हमने द क्वेश्चंस करने हैं। दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई। सूखी डाली कांगी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था? नौकरानी का नाम रजवा था। बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर शहर में था। दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। सूखी डाली कांगी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है? कुटुंब की तुलना वट के महान वृक्ष से की है। बेला ने अपने कमरे में से फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि वह पुराना हो गया और टूट फूट भी गया था। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? इसलिए क्योंकि वो ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। बेला ने मृषानी को काम से क्यों हटा दिया? क्योंकि बेला के अनुसार उसे ढंग से काम करना नहीं आता था और उसे काम का सलीका भी नहीं था। एकांगी के अंत में बेला
रूंधे कंठ से क्या कहती है? एकांगी के अंत में बेला दादाजी को कहती है कि आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? लास्ट चैप्टर है आवा जी अपने को लास्ट चैप्टर देश के दुश्मन। ठीक है, हूँ आप पढ़ना वा। सब तो पहले ओवरव्यू लेने आ। देश के दुश्मन एक देशभक्ति पूर्ण एकांगी आ जो समाज के भीतर छिपे शत्रुओं, तस्करों और कलाबाजारियों के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाती है। मुख्य पात्र च जयदेव आ जेड़ा एक नीडर पुलिस अधिकारी है, डीएसपी है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, उस तो बाद चैप्टर देखने च की सीगा जयदेव कौन सी? जयदेव अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर तैनात एक ईमानदार और बहादुर अधिकारी है। परिवार की पृष्ठभूमि की है। जयदेव के पिता ने भी देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था, इसलिए उसका पूरा परिवार देशभक्ति के संस्कारों से भरा है। उस तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिवार से तनावपूर्ण माहौल आ। रेडियो पर खबर आती है कि बग्गा बॉर्डर पर स्मगलरों के साथ मुठभेड़ में 2 सरकारी अफसर मारे गए हैं। सुमित्रा की घबराहट। जयदेव की माँ जड़ी सुमित्रा वा ये खबर सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाती है और उन्हें अपने पुत्र की सुरक्षा का डर सताने लगता है। मीना और नीलम का साथ। जयदेव की बहन मीना और पत्नी नीलम सुमित्रा को ढांढस देती है, मतलब उन दास दिया कि कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, और कहती है कि देश के लिए बलिदान देना गर्व की बात है। चाचा का आगमन। परिवार के मित्र चाचा घर आते हैं और सुमित्रा की बेचैनी देखकर उन्हें सांत्वना देते हैं। तस्करों का आतंक। नीलम और मीना चर्चा करती हैं कि ये तस्कर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली असली दुश्मन है। सत्य का उद्घाटन। चाचा बताते हैं कि मारे गए अफसर जयदेव नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर है। जयदेव नहीं सी मारा गया। जयदेव की वीरता। चाचा अखबार दिखाते हैं जिसमें जयदेव की बहादुरी की खबर छपी है कि उसने अकेले 4 तस्करों को मार गिराया। बरामदगी। जयदेव ने तस्करों से 5 लाख रुपए का सोना छीनकर देश की संपत्ति की रक्षा की। देश के दुश्मन को निकांकी स्पष्ट करती है कि सीमा पार के शत्रुओं के साथ साथ देश के अंदर छिपे तस्कर और भ्रष्टाचारी भी देश के दुश्मन हैं। होने दा जेड़ा कोर मैसेज हो किया, ये एकांगी हमें संदेश देती है कि बाहरी शत्रुओं के साथ साथ हमारे देश में भी अंदर बैठे आर्थिक अपराधियों, तस्करों से भी सावधान रहना चाहिए। यादेव जैसा जाबाज अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना इन देश के दुश्मनों का सफाया करता है। पूरा परिवार व्यक्तित्व मोह त्याग कर जयदेव की वीरता पर गर्व करता है, जो राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उस तो बाद रिवीजन कर लेने आ। जयदेव बाघा बॉर्डर पर नियुक्त एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ डीएसपी है। वे अपनी जान पर खेलकर सोने की तस्करी करने वाले अपराधियों को पकड़ता है। रेडियो पर अफसरों की मौत की खबर से परिवार में डर का माहौल बनता है। अंत में जयदेव की वीरता की खबर से परिवार और देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है। पाठ का मुख्य उद्देश्य तस्करों और कलाबाजारियों को देश का असली दुश्मन बताना है। यदि क्वेश्चंस करने हैं, सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था? जयदेव था। बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है? के माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? डीएसपी के पद पर नियुक्त था। जयदेव की पत्नी कौन थी? नीलम थी। बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर कौन थे? एक हेड कांस्टेबल था, दूसरा सब इंस्पेक्टर था। जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना? तस्करों को मारकर उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीना। जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया? 10,000 रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। मीना कौन थी? मीना उसकी बहन थी। नीलम क्या चाहती थी कि डीएसपी डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए। जयदेव अभी अभी घर आए थे और बहुत थके हुए थे, इसी कारण नीलम चाहती कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए। डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देते हैं? डीसी आकर सुमित्रा को खुशखबरी देते हैं कि जयदेव की वीरता और साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा और गवर्नर साहब की ओर से 10,000 रुपए का इनाम भी सभा में घोषित किया जाएगा। जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? घोषणा करवाना चाहते हैं कि इनाम राशि के आधे आधे पैसे दोनों मृत पुलिस अफसरों की विधवा पत्नियों में बांट दिए जाएं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।